Welcome to Edwiz Learning. So, in our last lecture, we have studied some properties. So, these are the properties that we have studied in last lecture. Let us revise property once and then we'll move to next exercise. The measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. Inscribed angle का जो मेजर होता है वो सामने वाले आर्क मतलब इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है. ठीक है. एंगल्स इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. एक ही आर्क में जो एंगल इंस्क्राइब है 2, 3, 4, 5 कितने भी दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो if we have a semicircle with us, then angle inscribed in semicircle is a right angle. If all four vertices of quadrilateral lie on the same circle, then quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. cyclic का मतलब सर्कल quadrilateral जिसके चारों भी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. This is the very important property of cyclic quadrilateral that opposite angle, सामने वाले एंगल, जो एंगल एक दूसरे के सामने हैं, they are opposite angles. Okay, they are supplementary in case of cyclic quadrilateral. And next is exterior angle property of cyclic quadrilateral. An exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angles. A pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. इसके opposite. Okay, उसका converse वाला statement था. If two points on a given line subtend equal angles, then two different points which lie on the same side of a line, then those 4 points are concyclic. Also, if we have two chords intersect each other inside the circle, then the measure of angle is equal to half of जो भी angle आपको ढूंढना है. Okay, तो सामने वाला arc plus पीछे वाला arc. Also, if two chords intersect each other outside the circle, then the measure of angle is equal to half of bigger arc minus smaller arc. So these are some properties that we have studied in our last session, and now we'll start with our next exercise 3.4. That is in a figure. So this is a given diagram in which O is a center of circle. So in figure, a circle with center O. Okay, तो ये O is the center of circle. Length of chord ABC, what is given? Length of chord AB is equal to its radius. It means the meaning of statement length of chord AB is equal to its radius. मतलब if this is a chord, तो chord का length is equal to the radius. तो ये बनेगा. Okay. Also, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग. ये मेजर आपको फाइंड करना है. एंगल AOB विच इज अ सेंट्रल एंगल, एंगल ACB विच इज अ इंस्क्राइब एंगल, ऑल्सो आर्क AB आपको फाइंड करना है एंड आर्क ACB. इतना हमको फाइंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग सोल्यूशन में हमको ये पता है कि OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो वो दोनों तो इक्वल ही रहेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कॉर्ड AB इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस. तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AB और ये दोनों रेडियाई दे आर सेम, तो ये तीनों सेम बनेंगे. एंड एज इन दिस ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. एंगल OAB is an equilateral triangle. As the triangle is equilateral, it has property all angles are equal to 60 degree. Therefore, our this answer, first answer, angle AOB is equal to 60 डिग्री. तो ये जो एंगल है हमारे पास, इसका मेजर कितना आया है, 60 डिग्री आया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एज एंगल हमको पता है ये सामने वाला आर्क है, देखो इसको फाइंड करना है, आर्क AB. सो वी नो दैट एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज ऑलवेज इक्वल. तो ये अगर 60 है तो ये भी होने वाला है 60 डिग्री. ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क. नाउ ये देखो ACB एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है विच इज एन इंस्क्राइब एंगल. हमको ऑलरेडी पता है मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. इस एंगल का मेजर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सामने वाला आर्क, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सेंट्रल एंगल की वो हाफ रहेगा, मतलब ये आएगा 30. रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से यार एंगल ACB is equal to half of major arc AB, inscribed angle theorem, half into 60 comes out 30. Okay, now ये भी पूछा है हमको major arc ACB, ये भी पूछा है. Okay, that is major arc AB
ए बी प्लस ए सी बी, ये पीछे वाला आर्क मिला के पूरा बनेगा सर्कल, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ए बी का जो मेजर कितना है वो 60 डिग्री आया, तो 60 प्लस मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360, 60 को वहां पे जाके माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 300। ओके, सो दीज आर आंसर्स फॉर द क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन आपको पूछा था। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज दिस क्विकली। इसको रिवाइज करेंगे, तब तक यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। सी इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन दैट ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ओ सर्कल का सेंटर है। ऑल्सो दिस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस, ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला है और हमको ये सब बातें फाइंड करनी है। तो स्टेप नंबर 1, एज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दे आर द रेडियाई, दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये वाले स्टेप में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये ए बी कॉर्ड और ये रेडियस दोनों सेम है, तो ये तीनों भी साइड सेम आएगा, दैट इज जैसे इस इक्वेशन में दिया हुआ है। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ओके, तो ये है एंगल एओबी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो आपको फर्स्ट वन पूछा है। ओके, अभी अगर ये एंगल 60 का आ गया तो सामने वाला आर्क भी रहेगा 60 का, सो आर्क AB is also equal to 60 degree. Why? Because by definition of measure of minor arc, क्या होता है definition? सेंट्रल एंगल और उसके सामने वाला आर्क, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ये एंगल फाइंड करने बोला है, एंगल ACB, पीछे वाला एंगल। सो दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। सो इट इज हाफ इंटू 60, इट कम्स आउट 30। एंड ये पीछे वाला आर्क हमको फाइंड करने बोला, ये वाला आर्क का मेजर कितना था 60 डिग्री, तो पूरा 60 में से ये 60 हम लोग माइनस करेंगे, यू विल गेट अ फाइनल आंसर। ACB इज इक्वल टू कितना आया वो 300। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम quadrilateral PQRS is a cyclic, quadrilateral PQRS कैसा है, साइक्लिक है। Why cyclic? Because all the 4 vertices are present on circle. Also we are given that PQ is equal to RQ, देखो ये PQ है is equal to RQ. Also angle PSR is equal to 110 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने को, फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR, मेजर arc PQR, arc QR and measure of angle PRQ. Therefore, solution we have quadrilateral PQRS is a cyclic. This quadrilateral PQRS is a cyclic. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मेजर ऑफ PQR, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, सो एज द quadrilateral is cyclic, as the quadrilateral is cyclic, opposite angles are supplementary. मतलब ये 110 है और ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए 180, एज द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों मिला के कितना आना चाहिए 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसमें से इसका मेजर आपको 110 दिया है, तो इसको यहाँ पे जाके माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल बिकम्स 70 डिग्री। तो ये आया आंसर फर्स्ट वन का 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ एंगल PSR। ओके, सो दिस एंगल PSR, this is the inscribed angle for this particular arc, this is intercepted arc, और वो एंगल क्या है inscribed angle। सो एंगल PSR is equal to half of measure arc PQR, रीजन inscribed angle theorem। तो इसका मेजर 110 है, यहाँ पे इसका 110 आर्क फाइंड करना है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लेके आए। सो मेजर आर्क PQR is equal to 2 into एंगल PSR, एंगल 110 है, देयरफॉर ये आर्क PQR कितना आएगा 220। तो इसका मतलब एंगल PQR का मेजर चाहिए था वो आ गया, आर्क PQR का मेजर चाहिए था वो भी कितना आ गया 220। ओके, इन दोनों का आंसर आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड मेजर आर्क QR। देखते हैं QR कहाँ पर है, ये QR, ये हाफ आर्क आपको फाइंड करना है, ऑल्सो ये वाला आर्क आपको फाइंड करना है, ऑल्सो एंगल PRQ, और ये एंगल PRQ आपको फाइंड करना है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR वी हैव PQ and QR both are same. So triangle is isosceles. So these are the congruent angles. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR वी हैव तीनों एंगल का मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PQR इसको हमने ढूंढा था ऑलरेडी, कितना 70 प्लस इन दोनों का एडिशन। ठीक है, सो PQR हमने 70 ऑलरेडी लिखा था,
नाउ ये दोनों एंगल बचेंगे, मतलब ये पी आर क्यू क्यू पी आर, तो क्यू पी आर को ऐसे ही रखा, पी आर क्यू के बदले में देखो यहाँ पे पी आर क्यू के बदले में वापस क्यू पी आर ही लिखा, क्यों? बिकॉज ये दोनों भी एंगल सेम ही है। वाई सेम? बिकॉज यहाँ पे देखो वो आया है आंसर में, ठीक है। सो ये 2 टाइम्स कर दिया, 70 को वहां पे जाके माइनस कर दिया, तो इट इज 110। सो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 55। सो एंगल क्यू पी आर ये आया 55। ओके, नाउ एंगल क्यू पी आर is equal to half of measure R QR. Angle QPR is equal to half of measure R QR. Inscribe angle theorem. तो वो आएगा 110. ओके, तो वो कितना आएगा 110. Therefore angle PRQ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल PRQ, तो वो भी कितना आएगा 55, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं? सेम ही है। Therefore ये एंगल PRQ जो आपको पूछा था वो भी कितना आया 55 आया। और क्या पूछा था? ये मेजर आर क्यू आर भी पूछा था, वो भी कितना आया 110. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस रिवाइज दिस। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, तब तक हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द गिवन क्वाड्रिलैटरल विच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ऑल द 4 वर्टेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सर्कल, जिसमें ये एंगल 110 है, ये दोनों भी कॉर्ड है जो इक्वल है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. As it is cyclic quadrilateral, opposite angles, as it is cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. तो ये 110 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, तो उसमें से इसका मेजर कितना है 110, फिर उसको वहां पर माइनस कर दिया, तो ये आंसर कितना आया 70। तो एंगल PQR बिकम 70 डिग्री। उसके बाद for angle PSR, this is the intercepted arc. So by using inscribe angle theorem, angle PSR is equal to half of angle PQR. 2 को हम लोग यहाँ पे लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 220. ओके, तो मेजर आर्क PQR is equal to 220, ठीक है। आफ्टर दिस इन ट्राइंगल PQR, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल इक्वल, रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। नाउ ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से एंगल PQR इसका मेजर कितना है 70, ये दोनों सेम ही है, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया। तो QPR को ऐसे ही रखा और इसके बदले में QPR लिखा, ओके, बिकॉज इस इक्वेशन में ऐसा आया हुआ है, ठीक है। नाउ ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 70 वो साइड जाके माइनस 110, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बिकम्स 55। तो ये वो एंगल कितना आया 55 आया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि ये QR को फाइंड करो, तो यूजिंग इंस्क्राइब एंगल थ्योरम दैट इज इक्वल टू 110। ओके, क्वेश्चन में ये एंगल भी पूछा है, लेकिन ये दोनों एंगल सेम है, एज द इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्री। सो दिस इज अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सी थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वाड्रिलैटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो साइक्लिक है करके, ठीक है। और 2 एंगल का मेजर दिया है, एंगल R इज इक्वल टू कितना 5x माइनस 13, एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4। और आपको क्या पूछा है? एंगल R ढूंढो, एंगल N ढूंढो। तो आंसर अपने सामने, इट इज वेरी सिंपल, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। प्रॉपर्टी में आपको बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलैटरल MRPN इज अ क्या है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक है तो उनका अपोजिट एंगल कैसे आएगा? सप्लीमेंट्री आएगा। तो एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। R का मेजर कितना है? ये एंगल R का मेजर है 5x माइनस 13 और एंगल N का मेजर है 4x प्लस 4। ये 5 प्लस 4 बिकम्स 9, माइनस 13 प्लस 4 बिकम माइनस 9, माइनस 9 ये साइड जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 189, फिर इस 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 189 डिवाइड बाई 9 कम्स आउट, x इज इक्वल टू 21। तो ये x का आंसर आया, पर क्वेश्चन में x नहीं पूछा, एंगल R और एंगल N पूछा है। तो एंगल R का मेजर ये था 5x माइनस 13, तो 5 को ऐसे ही रखा, x के बदले में 21, जो आंसर यहाँ पे आया माइनस 13। 5 इंटू 21 किया, माइनस 13 किया, तो एंगल R इज इक्वल टू कितना आया 92। एक्जैक्टली सेम वे एंगल N का आंसर ये है, तो 4x का वैल्यू 21 प्लस 4, तो इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को ऐड किया, तो इट बिकम्स 88, ठीक है। हेंस द मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 88 डिग्री। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन राइट नाउ। खुद से सॉल्व करो, तब तक मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, तब तक आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रिलैटरल MRPN इज अ साइक्लिक, दिस इज द क्वाड्रिलैटरल विच इज गिवन एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल कैसा है? साइक्लिक है। एज द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक, वी नो दैट अपोजिट
एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब अपोजिट एंगल को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आर और एन ये दोनों एंगल आपको दिया है विच आर अपोजिट एंगल्स, सो दे आर सप्लीमेंट्री। एंगल आर का मेजर 5x - 13, एंगल एन का 4x + 4, 5x एंड 4x दोनों के साथ में x है करके उसको ऐड किया, 9x हो जाएगा। -13 + 4 आर ओनली नंबर्स, 13 को माइनस साइन, 4 को प्लस साइन, माइनस करेंगे -9 आएगा, -9 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे 189, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, x = 21। नाउ पुट x = 21 दिस वैल्यू इन बोथ द आंसर्स, दैट इज मेजर एंगल r = 5x - 13, 5 को ऐसे ही रखेंगे, x का आंसर कितना है 21 - 13, तो 5 × 21 - 13 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -13 करेंगे, = 92। आफ्टर दिस एंगल एन आपको फाइंड करना है, तो एंगल एन का जो मेजर है वो 4x + 4 है, 4 × 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +4 करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आंसर बिकम्स 88। सो मेजर एंगल आर का मेजर आएगा 92 एंड एन का मेजर कितना आएगा 88 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. See, for question number 4, in the figure RS is a diameter. This is RS, which is a diameter given. O is the center of circle. Okay, point T, here point T lies in the exterior of a circle. Prove that angle RTS, ये जो blue line दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन है, RTS is a acute angle. क्या प्रूव करना है, RTS is a acute angle. ये जो T एंगल दिख रहा है ये acute है. acute का मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से कम रहेगा, ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से कम रहेगा इज अ एक्यूट एंगल। ओके, देयरफॉर वी हैव कंस्ट्रक्शन, ये जो ब्लू लाइन जो ड्रॉ किया है ये ज्वाइंट किया हमने, और ये यहाँ पे P एंड S ये भी इसको भी ज्वाइंट कर लिया हम लोगों ने। नाउ प्रूफ, लेट RT इंटरसेक्ट, ये RT है, सेगमेंट RT इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट P. RS is a diameter of a circle. It is already given. As it is a diameter, we have this angle is equal to 90 degree. ये एंगल 90 डिग्री का है. एंगल RPS is equal to 90 degree because angle inscribed in semicircle is always right angle. Therefore, in triangle PTS, इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये एंगल कितना है 90. ठीक है, तो ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल है 90, और इसका ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है. सो इन ट्रायंगल PTS RPS इज अ एक्सटीरियर एंगल. सो वी नो दैट मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू. इसका दूसरा मतलब यह है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट एंगल. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज RPS ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट एंगल. रिमोट एंगल्स आर T एंड S, तो ये एंगल P का मेजर T और S दोनों से ज्यादा रहेगा. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. ठीक है, सो एंगल PTS इज स्मॉलर एंगल RPS इज अ ग्रेटर एंगल, एंड देयरफॉर एंगल PTS स्मॉलर मतलब क्या है, इट इज लेस देन 90. इट इज लेस देन 90. व्हाई? बिकॉज RPS एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, और ये 90 से कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल. Okay, so angle RTS is a acute angle which is a required answer. Okay, make a note of this. तब तक हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन में it is given that O is the center of circle, RS is a diameter. So step number 1, angle RPS is equal to 90 degree because angle inscribed in semicircle. Angle inscribed in semicircle. Semicircle के अंदर जो एंगल है that angle is equal to 90 डिग्री. ओके, तो ये सेमी सर्कल के अंदर वाला एंगल हो गया. इसका मतलब फॉर दिस ट्रायंगल, ओके, दिस एंगल इज अ एक्सटीरियर. सो प्रॉपर्टी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर या फिर बिगर देन रिमोट एंगल. तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल RPS इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल PTS. ओके, तो इसका मतलब PTS RPS से छोटा है. PTS RPS का आंसर कितना है 90, तो 90 से कम आएगा, मतलब एंगल कितना क्या रहेगा, it is a acute angle which is a required answer. So this is about question number 4. Now question number 5, a simple and important question. Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. कोई भी rectangle
साइक्लिक होता है, कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक होता है. सो दिस इज अ PQRS which is a rectangle. As it is rectangle, each angle is equal to 90 degree. Each angle is equal to 90 degree. Okay. So quadrilateral PQRS is rectangle. Prove that quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Proof. Quadrilateral PQRS is a rectangle. Each angle is equal to 90 degree. Region angle of rectangle. Now आपको क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल कैसा है? साइक्लिक है. कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होने वाला है? अगर उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? दोनों एंगल का मेजर मिला के 180 डिग्री आना चाहिए ना. उसी अपोजिट एंगल P एंड R, एंगल P प्लस एंगल R 90 प्लस 90, तो इट इज इक्वल टू 180. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ये आंसर बन जाएगा विच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल PQRS is given as a rectangle. As it is rectangle, each angle is equal to, as it is rectangle, each angle is equal to 90 degree. Reason angles of rectangle. Now आपको क्या प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है. तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब आएगा? अपोजिट एंगल P एंड R, या फिर आप QS ऐसे भी पेयर ले सकते हो अपोजिट एंगल का. If the opposite angles are supplementary, then the quadrilateral is cyclic. If the opposite angles are supplementary, then the quadrilateral is cyclic. Therefore, ये अपोजिट एंगल है. क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब बनेगा? दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 बिकम्स 180. तो ये हो गया अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर अल्टीट्यूड्स YZ एंड XT ऑफ ट्राइंगल WXY इंटरसेक्ट्स एट P. दिस इज द गिवन ट्राइंगल. ये दोनों अल्टीट्यूड है, एक दूसरे को P में इंटरसेक्ट करेंगे. स्टेप नंबर 1, प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है आपको? क्वाड्रिलेटरल WZPT. Prove that this quadrilateral is cyclic. Also prove that X, Z, T, Y are the points which are concyclic. ये आपको प्रूव करना है. So first one, quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. Okay, ये आपको प्रूव करने बोला है. Okay, so to prove हमने लिखा. फिर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ये आपको प्रूव करना है. प्रूफ एंगल XTW देख लो. क्वेश्चन में आपको बोला है एंगल XTW, ये कितना है? 90 डिग्री गिवन, पहले से दिया हुआ है. एंगल Z भी 90 डिग्री है, ये भी पहले से दिया हुआ है. अभी येलो वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब आएगा? इफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो चेक करेंगे दोनों एंगल का एडिशन 180 आ रहा है क्या? सो 90 प्लस 90 बिकम्स 180. देयरफॉर दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 बिकम 180. सो हियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. रीजन कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. देयरफॉर ये दोनों एंगल 90 90 गिवन में है, अपोजिट एंगल को ऐड किया, 90 प्लस 90 180. एज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ angle XZY, this angle is equal to 90 degree as well. This angle is also equal to 90 degree. Angle XZY and angle XTY both are 90 degree given. दोनों एंगल इक्वल. Therefore segment XY, ये है segment XY which subtend equal angle. जैसे ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90. इसी सेगमेंट में सेगमेंट ने एंगल सबटेंड किया है. कैसे पता चल रहा है हमको? उसी सेगमेंट के एक ही साइड पे दोनों एंगल है फर्स्ट, और एंगल का अगर हम लोग नाम पढ़ेंगे जैसे एंगल XZY, XTY, दोनों के लिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम. एक से स्टार्ट हो रहा है, Y पे एंड हो रहा है. देयरफॉर सेगमेंट XY सबटेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल एट पॉइंट Z एंड पॉइंट T on the same side of line XY. Therefore points are concyclic points. Points are concyclic point. Concyclic का मतलब क्या होता है? The points which are present on circle. हम लोग कोई प्रॉपर्टी यूज करके ये प्रूव कर लेते हैं कि points are present on circle. Then the points are known as concyclic. Why? Because circle एक्चुअल में यहाँ पे डायग्राम में हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि points are present on circle. Therefore हम लोग उसको बोलेंगे concyclic points. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं. तब तक यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. वी आर गिवन दैट इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल this angle is equal to 90 degree, this angle is also equal to 90 degree.
ओके आपको क्या प्रूव करना है, ये दोनों बातें आपको प्रूव करनी है। फर्स्ट वन, ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब आएगा, व्हेन अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंगल 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑल्सो this angle and this angle 90 degree, both the angles are present on same side of line xy, and therefore these are the points which are concyclic points. Why? Because segment xy subtend congruent angles at point z and t are on the same side of line xy, and therefore according to our property, therefore points are concyclic. ठीक है, this is for question number 6. Now moving towards question number 7. It is very easy. This is very easy as per our formula जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. डायग्राम मैचेस विद द फॉर्मूला. व्हाट इज गिवन, मेजर आर्क एनएस इज गिवन एज 125 एंड मेजर आर्क ईएफ इज गिवन एज 37. ठीक है, क्या क्या करना है फाइंड, देखो एंगल एनएमएस. सो एंगल एनएमएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बिगर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क. सो इट इज वेरी सिंपल. ओके, माइनस करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे. यू विल गेट अ फाइनल आंसर फॉर एंगल एनएमएस इज इक्वल टू 44 डिग्री. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. सो हियर both the chords intersect each other inside the circle at point B. Major arc AE is given as 95. Angle ABE is equal to 108 degree. और आपको क्या फाइंड करने बोला है, ये फाइंड करना है. So we have a formula again. Both the chords intersect each other inside the circle at point B in the interior of circle. That is, measure angle AB is equal to half of सामने वाला आर्क प्लस पीछे वाला आर्क. हाफ मेजर आर्क DC जो फाइंड करना है, AE कितना है 95. देयरफॉर इसको हम लोग खाली सॉल्व करना है. ये 2 को हम लोग यहाँ पर लेके आए तो मल्टीप्लाई हो गया और 216. फिर 95 को माइनस भी करेंगे, विल गेट अ फाइनल आंसर. मेजर आर्क DC इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, विल गेट अ फाइनल आंसर फॉर मेजर आर्क DC. ओके, this is about question number 8, and with this we have completed our practice set, that is exercise 3.4. okay, now we'll move to next properties which are useful for 3.5. so total there are 3 properties we have with us. Theorem of internal division of chords. So this is the new concept again for exercise 3.5. theorem of internal division मतलब क्या, internal division of chords. so as name suggests, chords और उनका इंटरनल डिवीजन. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सपोज 2 chords of a circle intersect each other in the interior of circle, then the product of the length of the 2 segments of one chord is equal to the product of length of 2 segments of other chord. That is, suppose we have a diagram with us for a circle. Say P is the center of circle. These are the 2 chords AB and CD intersect each other at point E. Now according to our statement, then the product मतलब multiplication of the 2 segments of one chord. Suppose we have chord AB, तो 2 segment क्या हुआ, AE and B, इसका प्रोडक्ट तो AE into B. सेकेंड chord is CD. ओके, तो उसका 2 segment CE and D, उनका प्रोडक्ट मतलब CE into D. Both the products are same. That is, 2 chords AB and CD of a circle with center P intersect at point E. क्या प्रूव करना है आपको, देखो AE into B is equal to CE into ED. This we need to prove. Now construction. Draw segment AC and DB को ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने. Now these are the 2 triangles. Consider 2 triangles and show them similar. In triangle CAE and triangle BDE we have एंगल E एंड एंगल E. दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल. ऑल्सो वी हैव एंगल CA, ये वाला एंगल, एंड ये D एंगल. बोथ द एंगल्स आर इक्वल. ओके, रीजन, एंगल्स इंस्क्राइब इन सेम आर्क. ये दोनों भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब हुए. कैसे पता चलेगा मुझे, ये एंगल CAB, एंगल CDB दोनों के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम, और इस एंगल के लिए यह इंटरसेप्टेड आर्क, इस एंगल के लिए भी ये सेम इंटरसेप्टेड आर्क है. देयरफॉर दीज आर द एंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे आर इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क. देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. एक ये एंगल आया और ये दूसरा एंगल आया. देयरफॉर टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन,
करस्पॉन्डिंग साइड हमने प्रोपोर्शन में ले लिया, ए अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन बी. गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू ed. Okay, so after cross multiplication you will get the final answer. So this is very important and simple theorem. Let us revise this. You can make a note of this. The name of the theorem is theorem of internal division of chords. Theorem of internal division of chords मतलब chords एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे. अगर ऐसा हो रहा है तो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का दो सेगमेंट, बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एक कॉर्ड का दो सेगमेंट हो जाएगा. सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज ई, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू दूसरा कॉर्ड है सी डी, तो सी इंटू ई डी. ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है. सो गिवन कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ई, ये आपको प्रूव करना है. ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी. कंस्ट्रक्शन में वो हमने ज्वाइन कर लिया तो ट्रायंगल बन गए दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे. तो उसमें ये अपोजिट एंगल है और ये दीज आर द टू एंगल्स इंस्क्राइब इन सेम आर्क. सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी and therefore taking corresponding sides in proportion, that is corresponding sides of similar triangle, and go for a cross multiplication, cross multiply करेंगे. This is the final answer. Okay, so this is the first property for next exercise 3.5. now moving towards second property. जैसे ये था theorem of internal division of chords, exactly same way theorem of external division of chords, मतलब इसमें दोनों भी कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे थे. नाउ दोनों कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होने वाले हैं, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. सो इफ सीक्वेंस कंटेनिंग कॉर्ड ए बी, सो दिस इज द सीक्वेंस कंटेनिंग कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट ई, देन आपको क्या प्रूव करना है, ए इंटू बी. देख लो यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी. ओके, आंसर ठीक से याद रखेंगे. सो व्हाट इज गिवन, कॉर्ड सी बी एंड कॉर्ड सी डी of a circle with center P intersect at point E outside the circle, prove that A into B, C into D. जो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ा वो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, इनका ये जो आंसर है हमको ठीक से याद रखना है कि हम लोग ने इसको कैसे ढूंढा. बिकॉज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 3.5 में सेम तरीके के क्वेश्चन, सेम डायग्राम हमको दिया होगा, तो हमको क्या करना है, ये आंसर हमको ठीक से लिखने को आना चाहिए. सो इट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी. सेम वे कंस्ट्रक्शन हम लोग को कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी सी, ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी सी, ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है. सो आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंगल ए डी एंड एंगल सी बी इज अ कॉमन एंगल, दैट इज एंगल ई इज अ कॉमन एंगल. ओके, दिस एंगल इज अ कॉमन एंगल जो दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है. एंगल डी ए ई, हियर डी ए ई, ये वाला एंगल और एंगल ये दोनों एंगल दे आर इक्वल बिकॉज दे आर एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क. सो बोथ द ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन एंड अगेन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द फाइनल आंसर. सो अगेन द थ्योरम और प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल. Theorem of external division of chords. If sequence containing chord AB and chord CD, AB and CD, जिसमें वो सेकेंड एक दूसरे को सर्कल के बाहर जाके E में इंटरसेक्ट हो रहा है, सर्कल के बाहर जाके E में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपको प्रूव करना है AB इंटू ए इज इक्वल टू C इंटू सी डी. दिस वी नीड टू प्रूव. What is given, chord AB and chord CD of a circle with center P intersect at point E outside the circle. Prove that A into B is equal to C into D. Construction, draw segment AD and segment BC. Segment AD and segment BC आपको draw करना है. Now, consider two triangles, that is triangle ADE, ये वाला triangle and triangle CB, जिसमें angle E is a common angle present in both the triangles. And these are the two angles, same पहले वाले diagram की तरह. These are the two angles inscribed in a same arc. Therefore, triangles are similar to each other by
AA test of similarity, taking corresponding sides in proportion and go for a cross multiplication, you will get the final answer. Now moving toward last and third property, that is tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem. So as name suggests here, point E is in the exterior of circle. A secant through E intersect the circle at point A and B. तो ये वो secant है. Okay. And tangent through E touches the circle at point T. Okay. मतलब tangent secant, ये है tangent, ये है secant, segment theorem. तो क्या प्रूव करना है? देखो, EA into EB is equal to ET square. So we are given that tangent ET touches circle at point T. Secant EAB intersects circle at point A and B. This we need to prove. Again, construction, draw segment TA and TB. ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया. Okay, now in triangle EAT, again ये वाला ट्राइंगल EAT, okay, और दूसरा ट्राइंगल है ETB, ये वाला ट्राइंगल. Okay, in this we have angle E is a common angle present in both the triangles. Also, these are the two angles which are equal. These are the two angles which are equal. Reason tangent secant theorem. तो वापस दो एंगल इक्वल हो गए, तो वापस टेस्ट बनेगा बाय AA टेस्ट ऑफ similarity, taking corresponding sides in proportion. Again go for a cross multiplication, you will get the final answer. So corresponding side में ET and EB और EA and ET, then go for cross multiplication, you will get the final answer. Okay, let us revise this once. टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम. तो सर्कल में एक टेंजेंट है और एक सिकेंट है. आपको ये प्रूव करना है EA into EB is equal to ET square. Okay, so given that tangent ET touches the circle at point T, secant EAB intersects circle at point A and B. This we need to prove. EA into EB is equal to ET square. Construction, draw segment TA and TB. Now in these two triangle, ये छोटा वाला triangle which is triangle EAT and triangle ETB, जिसमें E is a common angle, जो मैंने येलो से आपको दिखाया है. Also this blue color, these are the two angles which are equal. Reason tangent secant theorem. So again triangles are similar to each other by AA test of similarity, taking corresponding sides in proportion and by cross multiplication you will get the final answer. Okay, so क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा आज? दैट इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये हमने पढ़ा. व्हेन द टू सेगमेंट्स इंटरसेक्ट या फिर कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, द प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. दिस इज द आंसर. AE into EB is equal to CE into ED. Now this is second property, when the two chords intersect outside the circle, that is theorem of external division of chords. And lastly we have studied this one, tangent secant segment theorem, जो अभी पढ़ा. EA into EB is equal to ET square. So this is about properties for exercise 3.4. Okay, so in next lecture we start with exercise 3.5. So before that you should know all the three properties. अगर इसका डायग्राम हम लोग बुक में अगर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो ये डायग्राम के हिसाब से हमको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने आना चाहिए. ऑल द थ्री डायग्राम या फिर तीनों प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट. इट इज वेरी इजी टू apply. So we'll see 3.5 in next session. Thank you very much.